Today, I, Tanisha Sharma, would like to welcome you all to the Judas Day, and the theme for the day is the impact of social media in criminal law. I would first like to introduce you all to our institute. Geetarattan International Business School was established in the year 2004, gives its affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, and is approved by All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for Technical Programs, and Bar Council of India for Law Programs. We are currently offering postgraduate programs in MBA, MBA International Business, and undergraduate programs in BBA, BBA LLB, and BA LLB. Our institute has been awarded A grade by the National Assessment and Accreditation Council in the second cycle. We have been also rated A+ by the State Fee Regulatory Committee, a fee committee of NCT of Delhi, and rated highest grading A by the Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and Guru Gobind Singh Indraprastha University. We have been rated Grade A by the Academic Audit Cell of Guru Gobind Singh Indraprastha University consecutively for past 8 years. Our institute has been rated number 2 by the... You love using social media, and this includes WhatsApp. You don't love using social media? WhatsApp अच्छा नहीं लगता है? मतलब WhatsApp भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब लगता है आपने तो ब्रेकअप हो रखा है, आपने भी WhatsApp अच्छा लग रहा है? Okay. How many of you are interested to know about different legalities in social media? क्या-क्या laws हैं अगर कोई crime हो जाता है? Okay. Let me give you a case scenario. आप लोगों ने कभी Instagram, Facebook ये सब यूज किया होगा? आप लोग यूज कर रहे हैं, एकदम से अकाउंट हैक हो जाता है, आप क्या करोगे? स्टोरी लगाते हैं। That's right, स्टोरी तो लगाते हैं। उसके बाद क्या करोगे? मतलब रिकवर कैसे करोगे उसको? या चलो आप एक और सिचुएशन, आप लॉयर्स बनेंगे, ठीक है? किसी का अकाउंट हैक हो गया और आपका फ्रेंड कहता है यार मेरा तो अकाउंट हैक हो गया, मैं क्या लीगल प्रोसीजर क्या है इसको ठीक करने के लिए? रिकवर कैसे करोगे? क्या करना चाहिए? Anyone? साइबर सेल क्या होता है? कौन सी साइबर सेल? अच्छा, साइबर सेल को कंप्लीट करके भी होगा क्या? मतलब ठीक हो जाता है? सर डीएक्टिवेट करते हैं ना साइबर सेल में, तो डीएक्टिवेट एकदम ऐसे हो जाएगा? मतलब पर्सनली व्हाट डू यू थिंक कि एकदम ऐसे हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा? social media companies to which are not over for example, if it's Instagram, then you have a particular procedure regarding when account gets hacked. Great, thank you. So in today's session, I'll be covering a few points. Number one, कि as a person, not regarding any law student or anyone, अगर social media hack होता है, करना क्या चाहिए? क्या basic do's and don'ts? Let me tell you this one important point. In social media or anywhere, you know, हमारी human tendency बड़ी खराब है और lawyers की और भी खराब है कि हमें पता है। ये lawyers की मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ही tendency रहती है जब lawyer बन जाते हैं, हमें लगता है हमें सब पता है। कोई गाड़ी में चलाना है तो पुलिस वाले तो बोलेंगे वकील आने से पकड़ना मत लो, क्या होता है? Social media में exactly यही होता है। Basic do's and don'ts होते हैं, वो follow नहीं करते हैं। And as law students, we should know the basic legalities, rules and regulations. So I'll be discussing those points, number one. Number two, I'll be discussing a few points as to where exactly is law going these days. आप में से बहुत लोगों का इंटरेस्ट साइबर लॉ में होगा, आईटी लॉ में होगा, नहीं भी होगा, that's fine. But एक चीज बहुत क्लियर है, वो ये है कि फ्यूचर में अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक्स नहीं पता, तो आपकी बैंड बजने वाली है, that's for sure. Because हर जगह टेक्नोलॉजी आएगी। अभी आज सुबह में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, चैट जीपीटी इज एक्चुअली, आपको पता है ना यूके में इन लोगों ने आर्टिफिशियल एआई जजेस शुरू कर दिए हैं, एआई लॉयर शुरू कर दिया। और इंडिया चलो मान लिया कि हम ट्रेंड में लेट आते हैं, 3-4 साल बाद आने हैं, तब क्या? So we have to equip ourselves really quick as to what exactly is happening in the digital scenario. Okay, a few snippets as to exactly what is happening right now. Cyber fraud. Man loses more than 2 lakh rupees while booking cab online in Maharashtra. Mumbai man loses rupees 22,000 from bank account after clicking on unverified link. Porbandar. Bride search on matrimony app turns out to be international thief.
ये बड़ा खतरनाक है, मतलब ऐसा मतलब ये नहीं शादी नहीं करनी है, ध्यान से करनी है। Women loses rupees 5 lakh after applying for a job through Instagram. Here's what happened. Delhi cyber attacking, one of the biggest frauds in Delhi. Man loses rupees 50 lakh, no OTP asked, just missed calls. Can it possible mic होगा एक normal mic and mic. Retired teacher loses rupees 21 lakh after clicking on a WhatsApp link. Okay, how many of you know about Usain Bolt? कुछ हुआ है Usain Bolt के पीछे कुछ हुआ है? कितने पैसे लगे होंगे? पूरी लाइफ सेविंग्स गई। It is cyber fraud. My whole life savings lost. Single month shocked after losing 60,000 francs to a scammer. Social media extortion plan for Kolkata doctor one arrested in Delhi. Random आप news reports पढ़ रहे हैं, but इतनी random नहीं है. This is just to tell you exactly what is happening in the digital scenario. Okay, now any random topics that you want me to cover today regarding social media? Any random, if you just raise your hands. Any topic that you're interested about, क्या है क्या नहीं है, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक करना है, वो भी तो कर सकते हैं। But डिपेंड करता है। बताओ। तो लोकेशन प्लीज बोला वहाँ से। Yeah. What if someone harasses on social media? Great, we'll be covering this. Anyone else? Any topics? No worries. How to detect and protect from social media crimes? Okay, how many of you have? मैं ये नहीं बोलूँगा how many of you have been a victim, but at least how many of you have heard about social media crimes that are taking place? Instagram, WhatsApp, Facebook. अच्छा किसी ने नहीं सुना है, अपने आसपास सुना ही नहीं कहीं. So this is a reality which is taking place these days, right? And today, as law students, let me tell you one thing. This is a major breakthrough which is coming. In the coming future, there will be a social media law that will be there, which will be governing every, all the respective social media that are there. ऐसा नहीं WhatsApp का एक law, Facebook का एक law, ऐसा नहीं. एक पूरा law बनेगा social media से related. और ये IT, अभी जो government की जो IT cell है, that's working on this regard. So you guys should know what exactly you have to do. See, इतना तो सब जानते हैं कि law is more about common sense than anything else. कॉमन सेंस है ना, लॉ पढ़ते हैं तो पता लगता है कॉमन सेंस ये तो करना ही चाहिए. कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं. सेम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं that we'll be discussing, as well as a few things that we all have to keep in mind, irrespective of whether you are a law student or not. Because ये पॉइंट्स कल को आप किसी को भी जाके बता सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ तो बहुत बेसिक्स लगेंगे आपको, यार क्या है ये तो मैं गूगल पे पढ़ लूँ. But let me tell you this one thing. Generally, hackers. Okay, how many of you have watched this movie called Dhoom 2? Please raise your hands. Dhoom 2 देखिए? क्या होता है? ऋतिक रोशन होता है ना, मतलब क्या हाई-फाई टेक्नोलॉजी और 2 कदम आगे होता है पुलिस से. आपको क्या लगता है हैकर जैसे रियल लाइफ में ऐसे होता है, हैकर जैसे होता है? ना हैकर वैसा होता है, ना हैकर हुडी में बैठ के ऐसे लैपटॉप में बैठा होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ. Generally, out of 100%, 40% of hackers are people above the age of 65. And the other 40% are below the age of 15. यानी 80% of की population बिल्कुल extreme है. जो हम generally hackers सोचते हैं वो सिर्फ 10% के बीच में. तो मैं आपको hackers के बारे में क्यों बता रहा हूँ? Hackers के बारे में इसलिए बता रहा हूँ because social media में जब बात करते हैं, crimes करता हूँ. हैकर्स करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, ये लोग करते हैं ना. So you have to understand how exactly hacker works, and this becomes very important because in the future, not मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा, मैं अभी near future की बात कर रहा हूँ. AI जैसे आ रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है, लीगल फ्रेटर्निटी में भी जब आएगी, तो हैकर्स तो हैं, हैकर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं. वो जब आपका अकाउंट को किसी जगह को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे और आपके पास कोई बंदा आएगा, यार क्या करूँ, आपको पता ही नहीं कुछ.
और ये रेगुलर ये सिविल क्रिमिनल ऐसा नहीं है कि यार कोई सोच रहा है मैं सिविल लॉ में जाऊंगा तो मैं सेट हो जाऊंगा, नहीं। वहां पे भी टेक्नोलॉजिकल क्राइम्स होते हैं। टेक्नोलॉजी हर जगह है, एक जगह ऐसी नहीं जहाँ टेक्नोलॉजी ना हो। और अब जो सारे जेनजी वाले बैठे हुए हैं, आपको पता है टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या है कि नहीं? लेट मी टेल यू, एन हैकर इज अ ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट। आपके साइकोलॉजिस्ट आपके माँ बाप से ज्यादा एक हैकर को आपके बारे में पता होता है। उसका काम, उसके पास कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं होती। आपको पता है जामतारा नाम सुना? क्या है जामतारा? नेटफ्लिक्स से मुझे पता है, नेटफ्लिक्स जिंदाबाद, उसी से ही जामतारा नाम सुना होगा। क्या है बात? विलेज है, साइबर क्रिमिनल्स की पूरी विलेज है। तो क्या बहुत एजुकेटेड लोग हैं? आईआईटी से आए हैं, स्टैनफोर्ड से आए हैं? अनएजुकेटेड हैं, फिर भी हैक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई कोडिंग नहीं आनी चाहिए। जो हम सोचते हैं कोडिंग, जावा, पाइथन, ये वो कुछ नहीं। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। And as lawyers also, if you guys agreed or not, अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पता है, तो आपको अपने क्लाइंट के बारे में पता है, आपको ये पता है कि क्या बोलूंगा। क्योंकि देखो, दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी, दो लॉयर्स होते हैं ना। ऐसा क्यों होता है कि एक लॉयर ज्यादा जज को भागता है, ज्यादा नहीं भागता? दोनों सेम लॉ, किताब पढ़ के बात कर रहे हैं ना। They understand human psychology. They know क्या मैं ये बोलूंगा तो जज ऐसे रिएक्ट करेगा। मैं साइकोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी आगे जाके जब हम कवर करेंगे, यू अंडरस्टैंड हाउ हैकर्स एक्चुअली यूज साइकोलॉजी मोर देन टेक्नोलॉजी। सो फ्यू पॉइंट्स, यूज डिफरेंट आईडी पासवर्ड, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस, राइट? मेक द पासवर्ड more complicated by combining letters, numbers, special characters, etc. Another question that came to me previous session was कि सर हम तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो बनाते हैं, बट हम 20-30 जगह यूज करते हैं, गूगल, पबजी, ये वो 10 जगह हम लॉगिन करते हैं, राइट? हम हर जगह सेम पासवर्ड यूज करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यार मतलब 20-30 पासवर्ड थोड़ी याद रखेंगे, तो क्या करें? आंसर टू दिस इज, इन आवर लाइफ 4 से 5 जगह क्रिटिकल होती हैं। बैंकिंग है ना, मेडिकल रिकॉर्ड्स, 3-4 ऐसी जगह जो बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है। एज लॉ स्टूडेंट्स आई एम श्योर यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा। सबको पता है, मतलब उसमें क्लैरिटी है। तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है, जहां का सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो बचाने के लिए तो आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, बट बाकी इधर-उधर की जगह है, इट्स नॉट नेसेसरी टू कीप दैट पासवर्ड। लाइक आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू ये 20-30 जगह सेम पासवर्ड मत रखो। होगा क्या कि हैकर जब आपके बारे में, हम उसको आईटी टर्म में रिकॉग्निसेंस कहते हैं। रिकॉग्निसेंस मींस अंडरस्टैंडिंग द होल पर्सन, कैसे बात करता है, बिहेवियर क्या है, सोचने का तरीका क्या है, हरकतें क्या हैं। तो जब हैकर आपके बारे में जानता है, उसको पता लग जाता है कि इसने एक ही पासवर्ड ना 20-30 जगह मारा है। उसने एक को क्रैक किया, सारी जगह क्रैक किया। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक ही जगह, आप 3-4 जगह उनका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, बट उसके अलावा हर जगह आप जो रैंडम रख लीजिए। मतलब इन सेंस यार, अगर आपके PUBG अकाउंट को किसी को एक्सेस मिल गया तो क्या ही होगा, आपके रिवॉर्ड ही खाली रहेगा ना, उसके ऊपर तो कुछ होगा नहीं। तो बोले पीछे से कोई बोला इसने बहुत पैसे खर्च किए, देखो ऐसे भी केसेस हैं, बट मेजॉरिटी में अगर आपको ऑप्शन दो, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, PUBG एक्टिविटी ऑफ फायरवॉल। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अ फायरवॉल बेसिक्स? प्लीज रेज योर हैंड। फायरवॉल क्या होता है? सुरक्षा कवच, इन शॉर्ट। सबको पता है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है ना ऐसी। Prevent viruses from infecting your computer by installing a regularly updating antivirus software. अब ये सब पॉइंट्स पढ़ के कुछ हो जाए, गूगल पे पढ़ लो यार, क्यों बता रहा है आपको? Why am I telling you this again and again? 89% of hacks today take place only because of one thing. You know what's that? Any random guesses? Just one factor, only one factor. Anyone? Human error है, but human error में सबसे बड़ा error क्या है? अनअवेयरनेस है। बट एक ह्यूमन एरर, उसमें सबसे बड़ा एरर ये है कि ह्यूमन बीइंग्स को लगता है हमें तो पता है, ये तो कॉमन सेंस है यार, ये कौन करता है? वो कॉमन सेंस में ओवर कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वही मार खाता है। ये सब चीजें बहुत बेसिक लगती हैं, बट जो क्रिटिकल, आपको क्या लगता है कि बेवकूफ है? उसी टाइम आपको अटैक करेगा जब आपको पता, आप जब इम्पल्स अटैक करोगे, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस सुना है ना, वही होता है। लेट मी गिव यू अ लाइव केस स्टडी।
So I please you remember this case study because in पूरे lecture में इस case study को ही in depth में देखेंगे. So a doctor in South Delhi, okay? He was a very good reputed doctor and हफ्ते के 3 दिन वो सर्जरी करते हैं अपने रिस्पेक्टिव क्लिनिक में, ठीक है? सुबह 12 से 3 सर्जरी करते हैं. अब वो होता क्या है इन दिनों वो एक ना साउथ दिल्ली में नया घर ढूंढ रहे हैं. वो रहते लाजपत में बट वो GK1 डिफेंस कॉलोनी इस जगह घर देख रहे हैं. हर दिन 12 से 3 बिजी रहते हैं. एक दिन क्या होता है एंड लेट मी टेल यू दिस डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है ये बहुत ही अवेयर डॉक्टर है. मैंने टॉक अबाउट IT, इनके सारे दोस्त IT में हैं तो ये आसपास जब बात करते हैं तो सब पता है, ऐसी बात नहीं पता. अब होता क्या है एक दिन ये क्या करते हैं हर ऑल्टरनेट डे जब सर्जरी करते हैं 3 घंटे की सर्जरी बहुत एग्जॉस्टिव सर्जरी होती है. उसके बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं हर टाइम, ठीक है? which is between 11:30 to 11:40 मिनट ब्रेक. एक दिन क्या होता है इनको ना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आता है उस 10 मिनट के ब्रेक के बीच कि सर ये ऐसे प्लॉट है, हमें आपकी कहीं से डिटेल्स मिली, आप ऐसे प्लॉट देख रहे हैं सर, ये जो लिंक है ना इस पे क्लिक करके जो OTP आएगा आप हमें वापस भेज दीजिए. ठीक है, तो लिंक क्लिक किया, OTP वापस भेजा, सर्जरी पे चले गए, वापस आए तो 25 लाख आउट. अब ये केस स्टडी आप ध्यान रखना क्योंकि इसको धीरे धीरे I'll tell you how did the hackers do this and why am I again telling you how as law students you need to know how hackers think, because in every sector whether it's criminal law, environmental law, civil law, maritime law, any law, technology आएगी. अगर आप आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे केस पढ़ रहे हैं जहां नॉर्मल लॉ में अब देखो अगर सिविल लॉयर, ठीक है, व्हाट्स योर नेम? हर्ष. जब हर्ष इज सिविल लॉयर, ठीक है, वो टाइम गया कि मैं सिविल लॉयर हूँ, क्या हो रहा है दूसरे फील्ड में छोड़ो, बहुत इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो गया है. अगर हर्ष सिविल लॉयर है, इन्होंने क्लाइंट जी चलो जी आ गया क्लाइंट ये मैटर लड़ रहे हैं, वहां आ जाता है जी क्लाइंट ने तो फोन से कुछ उल्टे सीधे मैसेज भेजे डिलीट मार दिया. अब क्या करेंगे हर्ष? वो बताइए. कहने का मतलब ये है कि दिस इज मोर नेसेसिटी नाउ. वो टाइम्स गए, कोविड से पहले के टाइम्स भी गए कि यार छोड़ो ना, मेरे को नहीं जानना टेक्नोलॉजी. हर जगह टेक्नोलॉजी आ गई है एंड यू हैव टू नो अबाउट इट. एंड ये जो मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर वाला, इसको आप लोग याद रखना बिकॉज़ आई स्लोली एंड ग्रेजुअली टेल यू हैकर्स ने किया कैसे जामताड़ा में रहने वाले लोग जिन्हें कभी आज तक 5th स्टैंडर्ड तक भी नहीं पढ़ा होगा वो हैक कर रहे हैं मजे में. ऐसा क्या है? और हम इतने एजुकेटेड होने के बाद LLM करते हैं, सब करते हैं, फिर भी फंस जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो बेवकूफ तो हम हो ना, वो थोड़ी बेवकूफ. बिकॉज़ हम हर टाइम हम अंडर एस्टिमेट करते हैं दूसरों को, खुद को सोचते हैं बहुत आता है. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. मेक श्योर यू यूज योर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स आर सेट टू प्राइवेट. चलो ये पढ़ के तो ना बहुत लोगों का दिल टूट जाएगा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, है कि नहीं है? पब्लिक अकाउंट नहीं करेंगे तो यार फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा? सी लेट मी टेल यू वन बेसिक फंडामेंटल. अगर आपका जिसे कहते हैं खर्चा पानी सोशल मीडिया से आ रहा है तो आप पब्लिक नो डाउट पब्लिक आप रखोगे तो बैंक बचने के चांसेस पूरे. देखिए जब हैकर अटैक करता है ना बहुत वॉल्स होती है, जब आपने पब्लिक रखते हैं तो बहुत वॉल्स आपने हटा दी तो उसका काम थोड़ा और आसान हो गया आपका हटा देने में. बट ट्राई टू कीप इट प्राइवेट. This again I'm telling you this lecture is a mix of few laws we'll discuss but more importantly the practical tips. Because पता होता क्या है, हम लॉ पढ़ लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट ये प्रैक्टिकल आपसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेंगे. सर आप क्लाइंट आया आपके पास, सर ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी का केस हो गया, सर उसने तो ना मेरा उल्टा सीधा मैसेज भेज दिया, उसने तो ऐसे कर दिया, मैं क्या करूं? आपको बताइए. अब आप ये थोड़ी बोलोगे यार मैं तो आई एम जस्ट अ सिविल लॉयर है, मेरे को नहीं पता इस बारे में. डेफिनेटली एवरीथिंग जो कि मैटर में हो रहा है, ये बेसिक प्रैक्टिकल चीजें जो आप एज लॉ स्टूडेंट्स यूज करो ना करो, रियल लाइफ में तो जरूर यूज कर सकते हो. Be aware that your mobile device is vulnerable to viruses and hackers. Okay, how many of you believe that all of us sitting in this room are vulnerable to hacks, cyber fraud, online financial frauds? कोई ऐसा है जो vulnerable नहीं है? और हाँ, अगर किसी ने बोला Nokia 4700 कौन सा फोन है वो? हाँ, वो मेरे पास है तो आप फिर भी vulnerable हैं. आजकल ऐसे फोन जिसमें इंटरनेट नहीं है उससे भी हैक होने के चांसेस होते हैं. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है. Download applications from trusted sources. Install the latest operating system updates. Keep your applications and operating systems with the latest system updates. Okay.
तो होता है ना जब भी लैपटॉप और फोन में कोई अपडेट की ऑप्शन आती है, प्लीज अपडेट, हम कहते हैं छोड़ यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 5 मिनट चले जाएंगे, 10 मिनट चले जाएंगे, ऐसा होता है। वो क्या है अपडेट होता क्या है, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, किसी को पता है? ओके, जनरली आईटी टर्म में ना अपना कोई एग्जांपल देता हूं। अगर ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजे से चोर घुस सकता है अंदर, ओके, हाइपोथेटिकली इमेजिन करो चोर भाग गया ना, हाइपोथेटिकली जस्ट इमेजिन यहां पर ना टाइम टू टाइम छेद होता रहता है, एग्जांपल that chain is a vulnerability that okay the thief can use this thing and he can enter the place and जो कंपनी होती है पीछे माइक्रोसॉफ्ट जो भी जिसका भी लैपटॉप वगैरह वो अपडेट होता है, अपडेट करने को बोल रहा है कि सर ये वायरस है आप अपडेट कर लो प्लीज, नहीं करोगे तो वल्नरेबिलिटी तो रहेगी वहां पे। और हम क्या करते हैं, कहते छोड़ यार क्या फालतू टाइम पास कर रहा है, that becomes very important and yes this is now another case study and this is for those who are not at all interested in IT. This is a live case study. तो एक मैटर चल रहा था हाई कोर्ट, ठीक है, बहुत क्रिटिकल मैटर, फाइनल हियरिंग तक मैटर आ गया, दोनों मतलब बड़ा ही हाई स्टेक्स थे, दोनों बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज थी इसमें तो, ठीक है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। अब हुआ क्या, एंड में आपको पता है एक लॉयर ने क्या किया, उस लॉयर को थोड़ी बहुत समझ थी आईटी की, he realized जो दूसरा लॉयर है वो अपने लैपटॉप पे कभी अपडेट करता ही नहीं, और ये किसी भी आप नॉर्मल बेसिक इंजीनियर्स को पूछोगे वो सिस्टम अपडेट करते हैं, वो सिस्टम चेक करते हैं। दूसरे लैपटॉप अगर आपको मॉडल बता देंगे, आप अगर मैं बोलूंगा यार ये लैपटॉप का मॉडल इसका एकदम चेक करके बता दो क्या सीन है, और वो बता देगा अपडेट्स लिए नहीं लिए। तो वकील ए को पता था, उसने वकील बी का लैपटॉप, और आपको फिजिकली लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको उसका मॉडल नंबर चाहिए, मॉडल नंबर मिल गया, उसने चेक करा दिया, उसको पता लगा अपडेट तो हो गया था, उसने एक्चुअली दूसरे का लैपटॉप हैक करवा दिया, और जो रिकॉर्ड्स थे केस का मटेरियल था सब कुछ था क्या लैपटॉप पे है, मतलब फाइल में बहुत कम होता है, बेसिकली मेकिंग नोट्स, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब गया। और कब गया, मैं हियरिंग से 1 मिनट पहले, तो जब वो हियरिंग में खड़ा उसने देखा लैपटॉप ब्लैंक क्यों है, गेम ओवर, मैटर क्लोज्ड। कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब आप कल को एज लॉयर या कोई भी प्रोफेशनल आप ये नहीं बोल सकते मेरे साथ ऐसा हो गया मेरे को नहीं पता था, चॉइस नहीं है, पता होना पड़ेगा। किसी को नहीं बोल सकते आप कि यार मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, एंड जज एक्चुअली ब्लास्टेड दैट लॉयर। क्या आपको पता नहीं है क्या है, जज को भी बेसिक चीज पता थी। Encryption for your most sensitive files such as tax returns or financial records. So encryption थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। In short, आपके पासवर्ड्स हैं उसको प्लीज स्ट्रांगली सिक्योर करो। Okay, how many of you believe that बहुत सारे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स इंक्रीज हो गए कोविड के बाद? या डेटा ब्रीच अटैक्स बहुत इंक्रीज? I'm sure you guys know about data breach attacks, right? Sensitive person data attack होता है। आपको लगता है कि कोविड के बाद एकदम से इंक्रीज हो गए, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। एम्स डेटा ब्रीच अटैक्स है ना, एम्स के ऊपर जो हुआ था, तो जिनको नहीं पता एम्स तो सबको पता है, ठीक है, इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े वीआईपीज, एक्टर्स, सेलिब्रिटी सब आ जाते हैं, वहां का डेटा सारा का सारा हो गया आउट। आप हो गया डेटा आउट हो गया, क्या फर्क पड़ता है, मतलब ठीक है। एक स्मॉल केस स्टडी दूंगा आपको। अगर मान लो मुझे एक एक्स, अब सारे जो पॉलिटिशियन वही जाते हैं, एंड सारे मतलब सारे कैबिनेट, पीएम, प्रेसिडेंट सब, अगर मान लो मैंने रशिया किया, रशियंस ने, ठीक है, ये तो प्रूफ है, मैंने सारा डेटा ले लिया, ठीक है, मुझे पता है एक्स पॉलिटिशियन जो है उसको इस चीज से एलर्जी है, अगर उसके खाने में मिला तो गेम ओवर, वो पॉलिटिकल विजिट के लिए जाए और हो गया काम। ऐसा हो चुका पहले भी, लाल बहादुर शास्त्री, वो पहले का जमाना था, अब इतना डेडली हो गया। कहने का मतलब है, तो नंबर 1 दिस, नंबर 2 जो बेचारे हैं नॉर्मल लोग जो एम्स कभी गए होंगे, उनका मेडिकल रिकॉर्ड्स वहीं पे सारे आउट हो गए, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स वो भी आउट हो गए। अब हैकर्स के हाथ में किसको यूज करना है, किसको पकड़ के उसकी टांग खींचना है। अब आप हो गया, मैं तो फंस गया, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। See, reality is
आपको अपना क्रिटिकल डेटा हर जगह देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होता। एक और चीज, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गो टू मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, केएफसी, सब जाते हैं? क्या प्रोटोकॉल होता है? मतलब आपने ऑर्डर देते हैं, उसके बाद क्या होता है? मोबाइल नंबर। और हम कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे दो यार, 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगली बार। ऐसा होता है ना, हम दे देते हैं। बाय द लॉ, इफ यू आर अ लॉयर, यू शुड नो, कोई लॉ नहीं आता नंबर देने के लिए। तो अगर आप पूछ रहे हो मैं क्यों दूं, कौन सी वो कहेंगे पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? कुछ जवाब नहीं होता आपके पास। आपका नंबर लिया जाता है और आपका पहले बात कोई नंबर पता नहीं कहाँ का बेचा जाता है, ठीक है? इधर कंपनी उधर कंपनी, ये वो गूगल। एक फैक्ट तो पता है ना, अगर इंटरनेट पे इफ यू गेटिंग समथिंग फ्री देन हु इज द प्रोडक्ट? इट्स you are the product. If you're getting anything free, there are no free lunches in today's times. If you're getting anything free, then who's the product? You are the product. आपके प्रोडक्ट आपको क्या, मैं कौन सा मार्क ज़करबर्ग है, मेरे डेटा का क्या उखाड़ लेंगे लोग? बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। वो आपका डेटा लेंगे, 10 जगह बेचेंगे पहले तो। कंपनी ए कंपनी बी को बेचेगी, बी सी को बेचेगी, सी डी को बेचेगी। और अब आपका जो डेटा है वो सारी कंपनीज के पास गया। उन कंपनी में से किसी एक कंपनी का भी डेटा ब्रीच अटैक हो गया ना, आपका डेटा हैकर्स के पास गया, वो हैकर्स आपके पास फ्रॉड कर देते हैं। और फिर आप कहते हो मैंने तो किसी को अपना नंबर नहीं दिया, मैंने अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं दी, तो मेरा कैसे आ गया इनके पास? ये फुल साइकिल है। एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम बेसिक थिंग कि हमें बेसिक लॉ नहीं पता, हम केयरलेस हो जाते, देते हैं अरे नंबर ले लो मेरा, 5% के डिस्काउंट के लिए करोड़ लाखों का डेटा आउट कर देते हैं। And this happens. Why am I telling you this? Because as lawyers आपको पता होना चाहिए भाई क्यों दे रहा हूँ मैं, ये मांग क्यों है मेरा डेटा। आपने डेटा प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट का नाम सुना? पुट्टू स्वामी जजमेंट, कुछ याद आ रहा है? डेटा प्राइवेसी क्या है? मेरा डेटा है, मेरी इजाजत के बिना किसी को नहीं मिलना चाहिए। आपको लगता है ये सही है, ये फालतू हवा बना रहे हैं, कुछ डेटा की क्या ही वैल्यू है? आपका डेटा 10 जगह जाएगा, कहीं से मिसयूज होगा। वो हैकर, मैं तो बता रहा हूँ ना, हैकर्स को ज्यादा काम करना नहीं पड़ता आज की डेट में। तो पता है यार लोग ही बेवकूफ हैं, एक डेटा 10 जगह पहुंचा होगा, 10 में से कोई एक जगह को भी मैं अटैक कर दूं, आगे नहीं बच सकता। एम्स में यही किया उन लोगों ने, पूरी जगह का डेटा एम्स का एक जगह पे था। और आप और ये लेट मी टेल यू, ये हैक रातों रात नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। इस हैक को प्लान करने में एटलीस्ट 3 से 3.5 साल लगे होते हैं आराम से। और होता कैसे है आपके सिस्टम में पहली बार, एंड ये जो मैं पूरी बता रहा हूँ स्टेजेस, दिस इज यू नो एक्ट फॉर एनी कंपनी, एनी बिग कॉर्पोरेट, एंड इवन एज एन इंडिविजुअल। अगर आपको लगता है आपका अभी अभी अकाउंट है, वो ऐसा नहीं है। बहुत पहले से एक स्पाईवेयर, मैलवेयर आपके सिस्टम में घुस जाता है। मूवीज देखिए ना क्या होता है, जो वो होता है ना, क्या होता है मुखबिर, स्पाई क्या करता है दूसरे देश में, जिस दिन जाता है उस दिन ही क्या अटैक करना शुरू हो जाता है? नहीं, पूरा स्टडी करता है, पूरा A to Z स्टडी करता है, कौन क्या कैसे कब कहां। स्टडी करने के बाद वो इंफॉर्मेशन वापस भेजता है। एम्स केस, कहीं किसी ने रैंडमली कहीं किसी ने, मतलब कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, उसने गलती से कोई क्लिक कर दिया होगा मैलवेयर, वो मैलवेयर घुस गया, पता भी नहीं लगा किसी को। उस मैलवेयर का काम था पूरा स्टडी करो केस, ये एम्स की जो पूरी जो सिस्टम है, कौन सा डेटा है, कहां जाता है, कौन सा पर्सन यूज करता है, कौन इसका इंचार्ज है, सब कुछ कर लिया, सारा डेटा हैकर्स को रशिया भेज दिया। अब उनके पास जब डेटा आ गया, उन्होंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि अब करना क्या है, और फिर वो अटैक करते जब क्रिटिकल मोमेंट होगा तब जाकर अटैक करते। इन इंडिविजुअल केस एज वेल, अगर आपका आज कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, हफ्ता 10 दिन पहले देखते हैं मैंने क्या क्लिक किया होगा, ऐसा नहीं है, कुछ महीने पहले आपने क्लिक किया होगा, कोई याद भी नहीं है, वहां से आपने स्पाईवेयर मैलवेयर आ गया, गेम ओवर। Wi-Fi networks are vulnerable to intrusion if they are not properly secured. Review and modify default settings. How many of you go to Starbucks? लगता है free Wi-Fi है यार, 4-5 घंटे लैपटॉप पे खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। How many of you think that free Wi-Fi is so damn dangerous? Why? फ्री वाईफाई, अगर आप लोग सारे, चलो आज पता लगा जी कोई आपके टीचर आते हैं कहते हैं वेरी गुड स्टूडेंट, हम तो बहुत खुश हैं, चलो पार्टी करते हैं, सब गए स्टारबक्स मैकडी कहीं चले गए, ठीक है, फ्री वाईफाई वहां सब यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ सबका फ्री वाईफाई क्या होता है, आपकी आईपी की फोन की जो आईपी होती है वो स्टोर हो जाती है एक जगह जहाँ फ्री वाईफाई का सर्वर है, आप सबके फोन की आईपी स्टोर होगी एक जगह, ठीक है।
मैं हैक करूंगा, मैंने सिर्फ इसको हैक कर दिया ना, सबके फोन के चिट्ठी मेरे पास है। पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स आर आल्सो वल्नरेबल। बहुत तो ये दिस इज अनदर केस स्टडी, मैं किसी को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या करता था, वो ना मेट्रो में जाता था ना, उसका नेट बड़ी जल्दी खत्म हो जाता था। जहां पब्लिक, अगर आप कभी भी वाईफाई ऑन करो पब्लिक प्लेसेस में, बहुत लोगों का हॉटस्पॉट खुला हो तो यूज करता था, कहता है फ्री इंटरनेट मिल रहा है। अच्छा ठीक है भाई, मिल रहा है, पता लगा अब जिसने हैक किया होगा उसने इसकी ये टेंडेंसी जरूर पकड़ी होगी। हैक रैंडम नहीं होते, बहुत स्टडी करके होते हैं कि क्या आदत है इसकी। एक दिन और उसने मेरे को ना हफ्ते से बोल रहा है यार ये आकाश कर, तो मैं जहाँ चाहता हूँ ये आकाश ए, आकाश बी, ऐसे नाम से ना हॉटस्पॉट मिलने शुरू हो जाते हैं। उसको लगा कोइंसिडेंस है, उसने हॉटस्पॉट यूज किया, हफ्ते बाद फोन का एक्सेस आउट हो गया, पैसे आउट हो गया। ये तो बहुत स्टूपिड केयरलेस एग्जांपल हो गया, बट कहने का मतलब है हम ऐसे केयरलेस करते रहते हैं। जो नंबर मैंने आपको बोला है, जो नंबर आप दे देते हो ऐसे ही डिस्काउंट के चक्कर में, ऐसे रैंडमली दे देते हो, that's a huge blunder mistake that you're doing. Be cautious when giving out personal information such as your name, address, phone number, or financial information on the internet. Make sure that websites are secure. Okay, websites को लिखा हुआ है HTTPS, वो S का मतलब होता है सिक्योर। अगर किसी वेबसाइट पे HTTP लिखा हो, S ना लिखा हो, तो बिल्कुल सिक्योर नहीं। भाग जाओ वेबसाइट, कितना भी डिस्काउंट मिल रहा है, कोई भी बढ़िया गेम है, कोई भी गाना अच्छा डाउनलोड हो रहा है, मत करो। सॉरी, गाना ही चलाना शुरू हो गया। क्या चीज? हमारे कॉलेज का प्लेटफॉर्म है EDU मार्शल, इस पे HTTP आता है, HTTP आता है, वेरी मच सिक्योर। ये तो अब देखो रियल लाइफ नहीं, ये रियल लाइफ है। आप एज स्टूडेंट्स देखो, जिसने भी, अगर आपने ऑब्जर्व किया, इट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। नंबर 1, नंबर 2, दिस हैज टू बी, तो देखो आप, मैं लेक्चर देने आया हूं तो ऐसा नहीं कि आप गलतियां करते हो, ये गलतियां सब करते हैं, ये बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, कोई एज वाला फैक्टर नहीं यहाँ पे, वरना हैक्स जो है ना जेंजी पे हो रहे होते हैं, बड़ों में नहीं हो रहे होते, सब पे होते हैं। So as law students, you should actually लड़ना नहीं है, जाकर बोलना है, सर ये ऐसे ऐसे है, प्लीज मतलब look into this matter। सबका डेटा बहुत ही क्रिटिकल है, फाइनेंशियल डेटा भी है, पर रियलिटी है कि कोई मतलब वो नहीं है, कोई मतलब कॉलेज के खिलाफ कोई मुहिम नहीं उठानी है, एक बेसिक है कि, और ये रियलिटी है। आज 10 में से 7 कॉलेजेस के स्कूल ऐसे होते हैं जो नहीं करते सिक्योर, बिकॉज एक्चुअली उनको नहीं पता, कभी गाइड नहीं किया यार। देखो कोई IT डिपार्टमेंट से नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा ना। आज करंट डेट में 80% लोग जो IT में खुद नहीं पता IT क्या होती है, तो दूसरों को क्या ही पता होगा। Okay, how many of you believe that Aadhaar is a big blunder? Why? It's a one-stop one solution. एक आधार अगर मैंने पकड़ लिया, सब ऐसे। बड़ा देखो, अब आपका एक और प्रश्न अगर कहीं ना कहीं तो देना पड़ता है, क्या करें? उधर तो मतलब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम लड़ तो सकते नहीं। So a lot of law students ask me this कि सर क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या लॉज हैं, सोशल मीडिया, ये वो। The harsh reality is, आधार अगर आपको देना पड़ रहा है तो अपना क्रिटिकल डेटा आपको देना पड़ रहा है। वो तो देखो बहुत लक पे डिपेंड करता है कि उस क्रिटिकल डेटा क्या यूज हुआ, क्या मिसयूज हुआ, बट फैक्ट क्या आता है कि एटलीस्ट आपके हाथ में जो उसको तो मत दबाओ ना। इन शॉर्ट, अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड्स आधार से नहीं होते हैं, वो आपको बेवकूफ बना के होते हैं। वो तो वो अगर उसमें अवेयर हो जाए तो एटलीस्ट 75% to 80% केसेस कम हो जाएंगे। एंड अबाउट दिस फॉर द लीगल फ्रेटर्निटी, आजकल नया वो निकला है, एक नई स्कीम चल रही है। आजकल आप कोई भी हाई कोर्ट लॉयर से पूछोगे आपको बता देंगे, पीछे एक ना अलग-अलग लॉयर्स को एक मैसेज आया क्या, और डिफरेंट मैसेजेस, प्लीज नोट नाउ। कुछ ग्रुप ऑफ लॉयर्स को मैसेज आया कि यू नो PDF लिंक फॉर रिस्पेक्टिव डिफरेंट जजमेंट्स, 15-20 जजमेंट ली थी और उसका लिंक लिख दिया। कुछ को लिख गया, कुछ को लिख गया कि यार इलेक्शंस में खड़े होने की मार्केटिंग, ये वो बड़ी अच्छी ऑफर्स हैं, ये कुछ लोग ये लिख गया, और लिंक सेम था। लिंक को जब आप पढ़ोगे वो लिंक बिल्कुल सेम था, मैसेज अलग था बस। कुछ लोगों को गया कि ये बड़े अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स टू एनहांस योर कोड क्राफ्ट, ये गया।
3 टाइप के मैसेजेस अलग अलग लॉयर्स को गए और रैंडमली नहीं गए। जिन हैकर्स को जो पता था जो लॉयर्स को बड़ा एक्साइट करेगा ये मार्केटिंग ऑफर वे कैंपेनिंग का, उनको भेजा। जिनको जजमेंट एक्साइट करेगी उनको वो भेजा। और क्या करना था, क्लिक करना था। हुआ पता क्या, क्लिक करने से कुछ नहीं हुआ, क्लिक करने से एक्चुअली वो जजमेंट निकली, मार्केटिंग स्कीम निकली, कुछ हुआ। बट साथ में मैलवेयर था, घुस गया सब जजेस किया, सॉरी सब लॉयर्स, कुछ जजेस ने भी एक्सेस किया। फैल जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग लोग होते हैं, इधर उधर फैला दिए वो कर दिया। क्या हुआ उससे, मतलब हुआ क्या एट इस चीज के होने के महीने बाद, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, एकदम से क्या हुआ, रातों रात सारे कितने सारे लॉयर्स के, हाई कोर्ट लॉयर्स के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो गए एकदम से। और एक दो भी नहीं, मैं तो 200 300 400 की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, अब आपको क्या है, लिंक भी ना प्रेस करो, यार लिंक प्रेस करो, कोई मना नहीं किया इससे, पता तो करो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भाई है, यहाँ कुछ भी मैसेज फैलते हैं, कुछ भी लिंक आते हैं। अगर आपको एक्चुअली ऐसे लिंक एक्सेस करते हैं तो एक चीज आती है VPN करके, VPN का नाम सुना, VPN फोन में चलाओ और फिर एक्सेस करो, एटलीस्ट आपकी IP तो नहीं पता लगेगी, कुछ तो सेफ हो गए। एक ब्राउजर है ब्रेव करके, तो नाम सुना ब्रेव, उसको यूज करो रादर गूगल यूज करो, खत्म भाई, गेम ओवर है आपका। ब्रेव यूज करोगे एटलीस्ट डिफेंस, एक लाइन ऑफ डिफेंस तो है। एनी प्रैक्टिकल चीजें देखो, आई ऑलवेज बिलीव, अब आप यार देखो रट्टे मारे, बट अभी आपके 3rd ईयर हो है ना, कुछ समझ आ रहा है, मतलब सीख लिया ना, टॉपर से भी कर लिया, लास्ट मिनट वाले पढ़ने वाले लोगों ने भी पार कर लिया, वो तो आप वैसे ही कर रहे हो। बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कौन सिखाएगा, तब क्या करोगे। और सारे लॉयर्स यही पूछते हैं, किताब में जो आप पढ़ रहे हो वो आप अकेले पढ़ सकते हो, कितने लोग, लेट्स बी फ्रैंक, दुखी से पढ़ लेते हैं ना यार, कुछ ही लगाते ना रात को एकदम रट्टे मार के आ जाते हैं, तो कहने का मतलब जो पेपर में होगा वैसे पढ़ लो, बट प्रैक्टिकली कैसी चीजें करोगे। ये मूड कोड जो आपको कराते हैं, क्यों कराते हैं, कि वो बुक्स में नहीं लिखा, बुक्स में कुछ हेल्प मिलेगी, बट कोड क्राफ्ट यू हैव टू लुक लाइक दैट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन बिटवीन, प्लीज आस्क। Click links with caution, social media accounts are regularly hacked. Look out for language or content that does not sound like something your friend would post. So ऐसे केस बहुत आते हैं कि मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त X, ठीक है। अब एक तो सब मानते हैं कि आपका जो फ्रेंड है, हर किसी फ्रेंड की टेक्स्ट करने का स्टाइल होता है, वो पता लग जाता है। अगर किसी और नंबर से टेक्स्ट करा पकड़ लोगे नहीं तो मेरा दोस्त ही है। कोई भाई बोलेगा, कोई यार बोलेगा, कोई ब्रो बोलेगा, है ना। So there's another case study, person X and the person was in college, okay? The person was in college. उस person के नाम से एक अलग नंबर से बहुत लोगों को टेक्स्ट किया, उसके कजन्स को गया, उसके बेस्ट फ्रेंड्स को गया, उसकी गर्लफ्रेंड को गया, बहुत लोगों को गया। और टेक्स्ट में था, बिल्कुल अगर आप मैसेज पढ़ोगे ना तो कोई बता नहीं सकता कि उस बंदे ने नहीं लिखा, सबने ये इसीलिए लिखा था कि यार आई एम डेस्परेट दिस थिंग, आई एम स्टक समवेयर, एक सिचुएशन बना दी, माय पेटीएम इज नॉट वर्किंग, प्लीज सेंड मी you know ₹5 मांगे so that I can activate my display। अब होता पता क्या है, हम लोग यहाँ बैठे सोच रहे हैं पागल, उसको ₹5 दे दिए फिर हैक हो गया होगा। उस सिचुएशन में कितने लोग, ये रियलिटी है, 10 में से 8 लोग कॉल तक नहीं करते हैं कि क्या हो गया, मैसेज तो पूछेंगे क्या होगा, कॉल नहीं करेंगे, भेज देते हैं। अरे भाई को जरूरत है, भाई तो रात के 12 बजे खड़ा है मेरे साथ। रियलिटी है, हमें बैठे बैठे लग रहा है because right now our state of mind is not like that, we are relaxed to sitting, we can think properly। Coming back to the doctor's case, क्यों वो डॉक्टर, जो मैंने शुरू में बात कर रहा था, क्यों वो डॉक्टर ने लिंक पे क्लिक किया उस टाइम पे, 10 मिनट का ब्रेक था, सर्जरी बंदा थका हुआ था और उसका दिमाग सेकंड हाफ ऑफ द सर्जरी में था, और आपको पता है उसके बाद टेक्स्ट कब आया था, 9th मिनट में। उस हैकर को पता था कि 10 मिनट में ही ब्रेक लेता है, उसको 9th मिनट में भेजूंगा। और सिर्फ एक डॉक्टर को नहीं आया, ऐसे कई डॉक्टर्स को आया होगा, कुछ लक बाय चांस बच गए होंगे, कुछ टैप कर दिया होगा। वो कहता है ना, जान का लंबा बिछाओ, मछली फंसी नहीं फंसी। इट्स अबाउट दैट मोमेंट दैट यू फॉरगेट योर बेसिक्स एंड यू थिंक दैट कॉमन सेंस। वो कॉमन सेंस पे कॉमन नहीं रहती है। हमें पता है ना कि टेक्स्ट करते वक्त सोच समझ के टेक्स्ट करना चाहिए, फिर भी जब लड़ाई होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लड़ाई होती है, तो बिना इम्पल्स में एक्ट करते हैं हम लोग, तब कॉमन सेंस नहीं आता हमारा, है कि नहीं है?
ह्यूमन साइकोलॉजी है। फ्लाइट और फाइट का भी आप करोगे सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए। बट अगर आपको बार-बार ही पता है कि आई हैव टू एक्ट प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली, तो एटलीस्ट कल को कोई इंपल्सिव एक्शन लेने से पहले बच जाओ। Be careful about what you share. Don't reveal your sensitive personal information. Okay, हम Facebook सबने यूज किया है ना? एक लाइव केस स्टडी है और ये केस स्टडी हैकर बिल्कुल गवार, ठीक है? गवार हैकर नहीं गवार, चोर बोलूंगा, ये सब चोर, ठीक है? फिर भी कॉमन सेंस यूज करके उसने क्या किया बताता हूँ। एक फैमिली, रिच फैमिली, ओके? ये लोग बार-बार हर 5-6 महीने में ट्रिप पे जाते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे बाहर सेटल हो गए, पढ़ने करने गए, तो हस्बैंड वाइफ 6 महीने में चले जाते थे ट्रिप पे। अब होता क्या था, इतना बड़ा घर था और ये लोग सिर्फ एक ही रूम में बैठे थे, तो बाहर से पता नहीं लग सकता था कि घर में कोई है नहीं है। लाइट स्टैंडिंग ड्राइंग रूम वगैरह की बंद रहती थी। अब एक नॉर्मल चोर, उसने सोचा चोरी करेंगे। चोर क्या करता है, वो होमवर्क करता है। बिना वो कहते हैं ना, चोरी करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, एक्सपीरियंस। तो अब क्या किया उस चोर ने बड़ी कोशिश की, बट ना वो देख नहीं पाया। he was not able to predict किया कि उसको कैसे इंफॉर्मेशन मिली, ये लोग ना ट्रिप पे जाएंगे, कब जाएंगे ये नहीं पता। अब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग बड़े टैक्स हैं और दोनों ही, एक वकील एक आईटी से, ठीक है? लेडी वकील थी और जो मेल था वो आईटी फील्ड का था, तो बड़ा थार कॉम्बिनेशन। दोनों गए जी मालदीव्स, और क्या किया दोनों ने मालदीव्स जाते ही लाइव लोकेशन शेयर करके, वी आर इन मालदीव्स एंजॉयिंग माय पिना कोलाडा, ठीक है? उस चोर ने एक स्मार्ट चीज की, उन्हें एक फेसबुक फ्रेंड बन गया था रैंडम अकाउंट से। और हम लोग इतनी बेवकूफियां करते हैं, रैंडम को भी ना, जिसकी थोड़ी ठीक ठाक प्रोफाइल पिक्चर, ठीक ठाक पोर्टफोलियो लग रहा है, उसको हम इंक्लूड कर देते हैं। उस चोर ने बस एक ही चीज स्मार्ट की थी, होमवर्क बढ़ाने के लिए फेसबुक उसने कर दिया था, बिकॉज ही गॉट टू नो बड़े टेक सेवी है। उसने दिमाग में लगाया कि इस लोकेशन शेयर होगी, उसका देखते हैं, लेट्स डू अ फेसबुक तो कोई भी चला सकता है, ठीक है? फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और चोर ना हम लोग चेक करता था। जब उसने चेक किया मालदीव्स में लाइव लोकेशन मालदीव है, उसी दिन क्या चोरी कर दी। ये वापस आए, कहते हैं हमारे क्या होगा, हमने तो किसी को बताया ही नहीं, हम जा रहे हैं, फिर भी कैसे पता लग गया? अरे पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीट दिया तुमने कि मैं मालदीव में हूँ। कितनी बार होता है आपको पता है? एज हैकर्स, अगर ओके, हम इतना मानते हैं कि हम लोगों का एक, हर किसी पर्सन का यहाँ पे एक ट्रेंड होता है घूमने का। कोई बंदा ज्यादातर हौस खास विलेज जाता है, कोई बंदा ज्यादातर रोहिणी में रहता है, ऐसा होता है कि सबको अपना पैटर्न पता है, ठीक है? या एटलीस्ट अगर आप कॉलेज जाते हो तो इतना है ना, रोहिणी के इन कॉलेज आते हो, रोहिणी के आसपास ही मिलोगे, रोहिणी के उसमें मिलोगे। हैकर्स ये यूज करते हैं, पहले पैटर्न पता है होगा, ठीक है? एक हम एक वाईफाई ट्रैप बोलते हैं, शॉर्ट वाईफाई ट्रैप इज यार, एक एरिया में हमने एक जाल बिछा दिया, अगर हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो इस एरिया में आएगा तो हमारे हैक करना बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग जब उस एरिया में जाते हैं हैकर्स तभी अटैक करते हैं। कभी भी आप नोटिस कर लेना, आपके साथ कभी कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो, कोई ऐसे नहीं होगा, आपको पैटर्न मिलेगा पूरा। तो कहने का मतलब कभी भी हम वी आर इन मालदीव्स, वी आर इन दिस, वी आर दैट, अरे भाई जाओ मालदीव्स, आ जाओ, अपनी पिक्चर डालो, थ्रोबैक डालो, थ्रोबैक करते हैं ना, थ्रोबैक कर दो भाई, बच जाओगे। Become familiar with the privacy policy of social media channels you use. Okay, as lawyers हम लोग privacy policy पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? 15-20 पेज फालतू के कोई नहीं पढ़ता। आप तो फिर भी स्टूडेंट्स हो यार, बड़ी कंपनीज के लोग नहीं पढ़ते हैं। आपको पता है ना कि ओके, मैं ब्रांड्स का नाम लूंगा और आप बस बोलना कि आप ब्रांड्स जानते हो। Amazon, Microsoft, Burger King, Domino's, Ola, Uber, Oyo Rooms। सब समझ गए इसने ओयो रूम का, हाँ है ना? ये सारी कंपनीज पे अभी भी रिसेंटली डेटा ब्रेच अटैक हो चुका है। तो आपका अगर आप गए थे परसों तो आपका मतलब समझ जाओ, गर्लफ्रेंड और जो भी sorry please पता है मतलब मुझे पता है उसको टॉपिक चाहिए, एक्साइटेड नहीं हो
कौन मांगता है? अब यहाँ जो अब यहाँ क्या हुआ भैया? ध्यान से देखना क्या हुआ भैया? एक टॉपिक छुड़ा सब एक्साइट हो गए। अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री देखेगा उसको पता है एक जगह नहीं बहुत होता है, बहुत सर्चिंग है, बहुत सर्चिंग है। और देखो ऐसे केस में जो लौंडे होते हैं ना अपनी सर्च हिस्ट्री वाला मतलब इजी प्रेडिक्टेबल, राइट? अब होगा क्या? अगर कोई एक्स पर्सन इज एक्चुअली प्लानिंग टू डू समथिंग, उसको हैकर तभी लगाएगा मैसेज, सर ऐसे सर वैसे टेक्निक के दाश्त है। कहने का मतलब है just giving example how psychology is used against you in every respective scenario and you don't even know। हमें लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमें ये सब किया होता है। हैकर्स कुछ नहीं करते हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको, वो बस सही टाइम पर सही मोमेंट पर एक्शन। Okay, steps to follow becoming a victim of social media crime. Now this becomes थोड़ा legal angle पे आते हैं कि exactly करना क्या है, जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था। Offline filing of the complaint. And these are some steps which you can either note down या जैसे भी है, because generally as law students या कोई भी आपके पास कोई आता है कि यार करना क्या, आपको पता तो होना चाहिए। उनको भी छोड़ो, खुद के ऊपर पता होना चाहिए क्या करना चाहिए। आपका भाई बहन दोस्त कोई आएगा यार ऐसा होगा मैं क्या करूँगा। As lawyers, मुझे पता है कि हमें लॉ का एल भी नहीं आता, ठीक है, फिर भी हमारे आसपास वाले सोचते हैं लॉयर, इसको पता नहीं है ऐसी केस ठोकेगा पुलिस वाला डर जाएगा, ऐसा होता है ना। लॉयर तूने लॉ की क्यों है, एक मेजर रीजन तो ये था थोड़ी होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए थोड़ा सोसाइटी में, बट तो कुछ बेसिक तो पता होना चाहिए ना लॉ के। Offline filing of the complaint. The first and the most important step in offline mode is to register a written complaint with the cybercrime cell of any jurisdiction after filing complaint against the crime. तो जैसे किसी ने कहा था पीछे शुरू में कि साइबर सेल में कंप्लेंट कर दो। Further, the complaint can register FIR at the nearest police station if they do not have access to any of the existing cyber cells in India. And let me come to the practicality. अगर आपको लगता है कि FIR करते वक्त harassment होगी, नहीं करेंगे, गलत बिहेव करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। As lawyer, let me give you a personal act. In cyber matters, cyber का जब भी कोई मैटर होता है ना, पुलिस को खुद नहीं पता करना, कुछ नहीं पता होता। Action, complaint and say I accept. Why it becomes very important? केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ केसेस में टर्म्स एंड कंडीशंस बोलती हैं, अगर कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया तो वो बोलती हैं अगर 100 दिन में आपका हम केस नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको पैसे वापस नहीं दे पाएंगे। वो विनती करते हैं, वो डालते हैं क्लाइंट से। कल को अगर आपका क्लाइंट जा रहा है और उसने फाइल कर दी, ये क्लाइंट को ही करना पड़ेगा, आप उसको गाइड कर सकते हो, बट क्लाइंट हैज टू डू इट मैनुअली। अगर क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके टर्म्स एंड कंडीशन में था कि आपके पैसे हम 50 दिन तक अगर कुछ नहीं हुआ तो नहीं वापस देंगे, 50 दिन हो गए तो किसकी जान खाएगा वो? आपकी जान खाएगा ना, कि तुम तो वकील थे, तुम नहीं बता सकते मेरे को। तो प्लीज ये थोड़ी हैबिट आप लोग डाल लो, टर्म्स एंड कंडीशन हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, ऊपर यू नो एक रीड करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज सी एंड ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप, इट्स नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, हम सबकी हालत है। पीछे आपको याद है व्हाट्सएप का बहुत बड़ा केस हुआ था डेटा प्राइवेसी पे कुछ साल पहले। क्या हुआ था आपको? शुरू में व्हाट्सएप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखता था योर डेटा इज आवर आईपी, मैं कुछ भी करूं। हम नहीं पढ़ते थे वो, हमें वो जिसे कहते हैं ना, हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, हमें लगा था ना हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो ये प्राइवेसी तो प्राइवेसी है, ऐसा नहीं होता। अब अचानक वो टर्म्स एंड कंडीशन को बोलता है कि वी फॉलो डेटा प्राइवेसी, बट ऐसा फिर भी नहीं होता। पीछे मार्क ज़करबर्ग का ट्वीट आया था, तो इसका इलन मस्क का, जहाँ उसने 2 लोगों की व्हाट्सएप प्राइवेट चैट पब्लिक करती थी for 1 मिनट, फिर जब उसके लोगों के कमेंट आए तो उसने डिलीट मार दी। इलन मस्क के पास कैसे आया एक्सेस 2 लोगों की व्हाट्सएप चैट था और स्क्रीनशॉट नहीं थे, वो प्रॉपर डेटा था, कैसे आया उसके पास? आप कुछ प्राइवेट इतना तो पता ना, इंटरनेट में कुछ प्राइवेट नहीं होता। हम ये भी आप देखना कैसे सब एक्साइटेड होंगे। हाँ मेरी एफएफ सेलिब्रेटेड वैलेंटाइंस डे। कितना दुखदार। अच्छा कभी जिंदगी में रोज पकड़ा है? रोज देखा तो होगा यार, नहीं पकड़ा, देखा तो है ना।
गॉड राइट? ऊपर तो रोज है, नीचे क्या होता है? That is what internet is. Internet glorified version सबको दिखता है, but if you are using the internet तो रिस्क तो है, पूरा रिस्क है. अब मैं ये नहीं कहूँगा इंटरनेट मत यूज करो, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत स्टूपिड एडवाइस होगी. प्रैक्टिकली आपको इंटरनेट यूज करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए यार, क्या करना है क्या नहीं करना है. These are some few steps I'll just cover this in brief. ये थोड़ा मैं उन लोगों के लिए यूज करता हूँ जो लॉ स्टूडेंट से नहीं होते. इन शॉर्ट, आप फाइल या कंप्लेंट पे जाओगे, ठीक है, कंप्लेंट फाइल कर दी, वो आपसे ऑप्शन मांगेगा. क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ साइबर बुलिंग हुई है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है? वो क्लिक करेंगे आप. उसके बाद ऑप्शन आता है कि एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, आपने थोड़ी ब्रीफ लिखो केस में हुआ क्या, आप केस लिख लोगे. उसके बाद ऑप्शन आता है, फ्यू ऑप्शन, बेसिक ऑप्शन होते हैं, whether this happened, yes or no, yes or no, yes or no करते करते you are able to actually this thing, you are actually able to file a complaint. अब practically होता क्या, आपने ऑफलाइन कंप्लेंट फाइल कर दी, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दी. In case of online financial fraud, now this becomes very important because ये बहुत ऊपर नहीं पता. RBI की कुछ साल पहले गाइडलाइंस आई, अगर आपके साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता है and within 72 hours of that fraud आपने एक लीगल नोटिस बैंक को भेजा है, तो लीगल लायबिलिटी बैंक की बनती है आपको पैसे वापस करना. बहुतों को नहीं पता होता है, और पता भी होता है तो ये नहीं पता उसको यूज कैसे करें. As lawyer you should know, because आपके पास कल को कोई भी क्लाइंट आता है, क्लाइंट तो क्लाइंट है ना, उसको नहीं पता आप किसमें डील करते हो किसमें नहीं करते, क्या है. जब पैसे निकल जाएंगे तो हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, यार मेरे पैसे निकल गए, क्या करूं. लीगल नोटिस आप बैंक को भेजेंगे 72 आवर्स के अंदर, लेकिन उसमें दैट नोटिस हैज टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बिकॉज़ अगर नहीं हुआ, बैंक ने कोई गलती निकाल दिया तो नोटिस रिजेक्ट कर देगा. देखो बैंक ने वो पैसे अपनी पॉकेट से देना है ना, वो क्या कोशिश करेगा कि मैं टाल दूं उसको, 72 आवर्स पर टाल दूं. अगर आप परफेक्ट नहीं उस काम में तो बैंक रिजेक्ट मार देगा आपको. बट अगर आपने नोटिस भेजा, फिर आप ये ऑनलाइन कंप्लेंट, ऑफलाइन कंप्लेंट कराएंगे, बैंक से फॉलोअप लेंगे, तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में बैंक वापस देता है. अगर कोर्ट केस की बात करूं तो कोर्ट केस में भी ऐसा कोई केस जब होता है, जनरली आप लोग, अगर हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइबर लॉज, आईटी लॉज? 2-3 पीपल. जनरली तो अलग अलग लॉज में इंटरेस्टेड होता है कोई. और हाँ बाय द वे, अगर लॉ में नहीं इंटरेस्टेड हो, बिजनेस अपना कोई माँ बाप का बिजनेस जो कुछ तो करोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आएंगी जरूर. फॉर लॉयर्स, एनी यू नो, इफ यू आर डीलिंग इन सिविल मैटर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, कहीं भी छोटी सी साइबर प्रॉब्लम आ गई, उसने उसको फोन से मैसेज भेजा, ये किया, वो किया, लैपटॉप से भेजा, आइए फोन और लैपटॉप सब यूज करते हैं, तो क्या करें, ऑफलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करेंगे और जज आपसे पूछेगा आपने किया है. अगर आपने किया उसके बाद आपकी बात आगे सुनी जाएगी, देन एक्चुअली द गेम बिगिंस. दिस इज जस्ट एन एडमिट कार्ड फॉर यू. ये नहीं किया तो एंट्री भी नहीं मिलने वाली है, सीधा बिजनेस. But these are the basic tips. Use verified apps only, use secure connections only, be vigilant while using cards. अच्छा, using, now this is a very contradictory statement, using UPI is very dangerous. अब आप बोलोगे यार हम सब तो UPI करते हैं, ये क्या बात कर रहे हो? देखो UPI में वही गेम है, खेल रहे हो तो रिस्क होता है. You won't believe, but today, right now, I don't use any UPIs. And sometimes creates a problem. जब दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, डच करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, कैश में चेंज होना पड़ता है, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाती है. एंड सो माय प्रैक्टिकल टिप टू यू ऑल इज कि मैं ये नहीं बोल रहा UPI यूज करना बंद करो, बिकॉज आपकी हैबिट भी बन चुकी है, बट एटलीस्ट उतना ही UPI में पैसे रखो जो कि हफ्ते का खर्चा है. कल को गया भी तो हफ्ते के ही जाएंगे, लाइफ सेविंग्स नहीं जाएगी. कुछ लोग अपना पूरा बैंक अकाउंट भी जोड़ देते हैं UPI से, कन्वीनियंट है, और लोगों की सारी आप देख रहे हो, हैकर को कुछ नहीं करना पड़ रहा, आप ही इनवाइट करो उसको, आओ जी हमने तो अपने पूरे रोड सजा रखी है, हमने बैंक, आप सिर्फ हमारा UPI हैक कर दो, आप हमारे बैंक अकाउंट तक पहुंच जाओगे. दूसरा अकाउंट बना लो, उसमें सिर्फ हफ्ते का रख लो, नहीं रखोगे तो कितना इजी हैकर के लिए यूज करना है. और फिर मेरे कॉमन सेंस, अब जो मैं बोल रहा कॉमन सेंस नहीं है, बड़ी कॉमन सेंस हमें कॉमन लगी अब तक, अब जाकर लग रहा है अच्छा हाँ बात तो ठीक है. Do not click on unknown and unverified links. Immediately delete such messages. This is for you people specifically. बहुत बार होता है ना, Instagram, उस पे WhatsApp पे मैसेज आता है और रीड नहीं करते, छोड़ देते हैं.
आपको पता है वो मैसेज आपके इनबॉक्स में रखने से भी हैकर घुस सकता है आपके यहाँ पे, रखने से। क्लिक नहीं किया आपने, उस मैसेज को डिलीट मारना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैसेज में मैलवेयर है। कुछ एडवांस हैकर जो यूज करते हैं, हर हैकर नहीं यूज करता, पर एडवांस हैकर जो जरूर यूज करते हैं। अकाउंट में आपके गया वो मैसेज, जब तक आपके अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही फैलेगा आपके सिस्टम में, तो उसको डिलीट करना बहुत जरूरी है और नहीं करते हैं। Always go to the official website of your bank. There was this case where a person, the hacker knew that person ICICI बैंक यूज करता है, ठीक है? वो गया, उसने फोन किया जी हम बैंक से बोल रहे हैं, वेरी सर्टिफाइड होके, आपको फोन में पता नहीं लग सकता कि बंदा झूठ बोल रहा नहीं बोल रहा। कुछ फालतू हैकर्स भी होते हैं, कुछ फालतू स्कैम्स भी होता है, पता लग जाता है। बट होता क्या है, कितने आपको पता है? ओके, ये लाइफ के स्टडी का एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे के अकाउंट में बहुत पैसे थे, ICICI बैंक यूज करता है, ठीक है? अब हैकर्स को पता नहीं, बंदा नॉलेजेबल है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जानबूझ के पहले 10 से 5 मंथ्स 10 से 15 फालतू, मतलब जिसे कहते हैं बच्चों वाली फेक कॉल इसको भेजी, जिसको सुन के पता लग जाए तो पागल बना रहा है। क्यों किया उसने ऐसा? जस्ट टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस कि मुझे तो आता है। फिर एक दिन किसी को कॉल कर रहा है अपनी टीम से, जो कि एक्चुअली जेन्युइन की तरह बात कर रही है कि ओके आई एम फ्रॉम दिस बैंक, आपका ब्रांच नंबर ही आपका बैंक अकाउंट है, तो उसको यकीन हो गया। यकीन इसलिए हो गया क्योंकि 10 बार जो फेक आए थे उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब एक्चुअली जब रियलिटी में दिमाग लगाने की जरूरत है उसने नहीं लगाया, उसने सच ही बोल रहा है। चलो जी, यहाँ तक भी दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, बट कहाँ पे बच सकता था? उसको लिंक मिला कि सर आप इस लिंक पे जाओ, हमने एक नई आपको अपना पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा, हम कुछ सिस्टम में चेंजेस करते हैं। उस लिंक में था ICICI बैंक, एक एक्स्ट्रा आई था सर, उसने नहीं ध्यान दिया जल्दी में, क्लिक कर दिया, हो गया ये बोल। So I'm just trying to tell you, दो चीजें हुई यहाँ पे, एक तो उसकी साइकोलॉजी से खेलना, दूसरा सर एक एक्स्ट्रा जो है लिखा है ऑफिशियल, और इट शुड बी ऑफिशियल, कुछ भी लेटर्स के ऊपर नीचे हो वो सर्टिफाइड नहीं है। और जितना ये जो आपको जितनी चीजें पता लग रही है ना, दिस इज जस्ट वन थिंग, इंटरनेट जितना फैंसी दिखता उतना है बहुत चीजें। आप गाड़ी चलाते हो, उसके रूल्स तो पता होता है ना आपको, कब चालान कटेगा कब नहीं कटेगा, बेल्ट पहननी नहीं पहननी। इंटरनेट कितने लोग चलाते हैं उसके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन पता है? कुछ नहीं पता। इंटरनेट पे पूरे टाइम जाके 6-7 घंटे पूरा बताएंगे, तो उसके बेसिक से नहीं पता कि करना क्या है। Very important. Bank officials, financial institutions, or any such entities will never ask you to share your confidential information such as username, passwords, card details, CVV. कि बहुत लोग वो कॉल करते हैं, सर आप अपना ये बता दो CVV, वो नहीं। जो बाइडेन का भी कॉल आता है ना, वो भी नहीं बताना, कोई नहीं मांगता, हमको जरूरत होती है आपको बताने की। जैसे आपका फोन नंबर है, कोई लॉ नहीं कहता कि किसी आप उनको फोन नंबर दो। अभी पीछे मेरे साथ हुआ 3 दिन पहले, मैं चायोस गया था, ठीक है? वहाँ क्या होता है, अगर आप लोग चायोस काफी लोग गए होंगे तो वहाँ होता है कि प्लीज फिल इन योर फोन नंबर, तभी आपको ऑर्डर मिलेगा। वो स्मार्ट बनते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं डालूंगा, कहते आपको ऑर्डर ही मिलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? कैसे पॉलिसी? मैंने कहा कौन पॉलिसी? तो एक डॉक्यूमेंट दिया है मेरे सामने, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, मैंने पढ़ा, वो उन्होंने खुद ही बनाया था, कोई लॉ से नहीं लाया। मैंने कहा ऐसा लॉ बताओ क्या है? नहीं माने, बहस होने लगी, मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा ऐसा है ना बताओ, पर मैं केस छोड़ दूंगा कि कर क्या रहा तो उनकी बैठ करती है। पर ये कहो, अगर आपको लगता है लॉयर्स हम तो बोलते हैं केस छोड़ दूंगा, यू नीड सर्टेन मटेरियल। लोग देखते हैं अच्छा केस ठोकेगा, कैसे ठोकेगा बता, तो उसको पूरा बताया ये इसका लॉ कहाँ है। कहने का मतलब है लोग बहुत स्मार्ट बनते भी हैं, कंपनीज भी, पर इतना हो अभी को जो कंपनीज है वहां तो अपना फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है ना, हम क्या करते हैं देते हैं। काफी सारे ऐप्स में अगर उबर आपकी लोकेशन मांग रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली लोकेशन नहीं मांगेगा तो पता नहीं आप दिल्ली में वो जयपुर चला जाएगा पिकअप करने। बट अगर उबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट मांग रहा है वो ठीक है, हम क्या करते हैं अलाउ। लेट मी टेल यू, अगर बहुत लोकल क्वेश्चनों का सो ऐप तो कुछ चलाने भी देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसकी बेसिक को यस बोलते हो, उबर का बेसिक्स इज लोकेशन, जोमेटो का बेसिक्स इज लोकेशन, कॉन्टैक्ट नॉट इज बेसिक्स। अगर आप उसके लोकेशन को यस बोलते हो आप ऐप चला देगा, पर हम क्या करते हैं भूख लग रही है जल्दी करो जल्दी करो, ये करते हैं। कितनी सारी जगह हम करते हैं और फिर क्या करते हैं मैंने सर हमारा ना आधार के लिए इसलिए हमारा अकाउंट हैक हो गया है। भाई
भाई आधार से नहीं होते सारे हैक। आप खुद हैकर्स को इनवाइट करते हो, लो ये पड़ा हुआ है सारा है, मेरे पैसे आ जाओ प्लीज। हैकर सिर्फ इतना देखता है कि कहाँ मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, स्टोरेज के चक्कर में स्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हैकर ज्यादातर जिनके फोन में स्टोरेज ज्यादा हाई होती है